Here we are for the next session, session number 7. I hope you are fresh after the Sunday holiday. So, what did we learn in the previous session? Yes, 3 graphs we are going to learn. I said bar graph, histogram and frequency polygon. So during the previous session we learned bar graph. Alright, in this session let's see histogram. Alright, see here frequency distribution table is given to you here. Alright, let me complete the frequency. Marks obtained 0 to 20, there are 7 students, 10 students here, 10 here, 20, 15 and 8. Yeah, total sigma Fi. इसको हम frequency भी कह सकते हैं Fi. Right? That is 9. All right. Here is one frequency distribution table. Marks obtained is given to you from 0 to 20. 7 marks. From 20 to 30. 10 marks. From 30 to 40. 10 marks. Now you can see there is repetition. 0 to 20 and then 20 to 30. 20 कहाँ नहीं है? Where it is upper limit. जो upper limit है वहाँ 20 नहीं है. 0 to 20, but 20 is not included in this class. 20 to 30, 20 is included, but that is clear. So during the previous session, when we drew the bar graph, also called column graph, all right, in the frequency distribution table, it was not continuous, it was discrete. 1 to 20, then 21 to 30, so there will be gap. Continuous नहीं है, repetition नहीं है, 20, 20, 30, 30, ऐसा repetition नहीं था. So there we draw bar graph. But if it is continuous frequency distribution, we'll have to prepare histogram. All right? Check. Once again, वही concept, the dependent variable, we are going to keep it on y-axis, and independent variable will keep on x-axis. Max is dependent, yeah, frequency is dependent. Frequency depends. Frequency this, frequency depends on that range, this class. So ये dependent है और ये तो हम बदल भी सकते हैं. और ये बदलेगा तो ये बदलेगा, ये बदलेंगे तो वो नहीं बदलेगा. You understand? So frequency depends upon class. So frequency is dependent quantity, so we'll have to keep it on y-axis और इसको x-axis. Axis पे कितने लेना होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 सेंटीमीटर तक तो होता ही, तो हम डबल ले सकते हैं. 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 क्लास, लेकिन हम लिखेंगे ही नहीं इसका. 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 क्लास, ऐसा लिखना ही नहीं है, तो क्लास है. ओके, ये लिखेंगे फ्रीक्वेंसी y-axis पे. मैक्सिमम कितना है? 20 ब्लॉक्स तो आपको मिलेंगे ऊपर. ओके, 20 ब्लॉक्स ऊपर आपको मिलेंगे. सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1. So this time we'll write scale only on y-axis. Scale of y-axis लिखेंगे. Alright, अब मैं शुरू करूं. फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही काम है, तो हम नीचे से 2-3 लाइन छोड़ देंगे, ब्लॉक्स 2-3 ब्लॉक छोड़ देंगे, और यहां से भी 2-3 ब्लॉक छोड़ देंगे. ऑलराइट, ओके. फिर हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स? 14 मिल जाएगा. 14 ब्लॉक्स आपको, 14 1 सेंटीमीटर के. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक मिल सकता है. राइट? और यहां भी आपको 20 ब्लॉक्स मिल जाएंगे, 20 सेंटीमीटर मिल जाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. This is
1 2 3 4 5 6 7 8. Let me write quickly. Okay, what is this? Frequency. Yes, of course you can write number of students. और ये क्या है सब? मार्क्स। या जीरो से स्टार्ट होगा तो ओरिजिन मतलब जीरो से ही स्टार्ट होता है। फिर 20 ना यहाँ 10 का लेना पड़ेगा। देखो क्या, जब 10 ही है ना वो पसंद करना पड़ेगा, वो भी लिखेंगे। चलिए 10 मार्क्स का गैप है 1 सेंटीमीटर में 10 मार्क्स का। सो डायरेक्ट 20 नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 के ऊपर तो जाना ही नहीं जाना है ना। लेकिन मैंने क्या बताया था चिल्ड्रन, हम 2 सेंटीमीटर लेंगे, ऐसा ना। चलो अभी ले लिया, जाने दो, लेते ले। अभी we made the provision, so we'll write 2 सेंटीमीटर 10, फिर 20 30। नहीं चिल्ड्रन, नहीं होगा क्योंकि अब 100 तक जाना पड़ेगा तो 20 ब्लॉक्स चाहिए। सॉरी, मैंने एक गलती की, हमने क्लासेस गिन लिए, हमें चाहिए 100 तक, क्योंकि ये मार्क्स है ना। सो 70 एंड अबव मतलब 100 तक जाएंगे, तो क्या द टेस्ट इज नॉर्मली ऑफ 100 मार्क्स। सो 70 और अबव मार्क्स पाने वाले 8 स्टूडेंट्स हैं, किसी का 99 भी हो सकता है, किसी का 100 आउट ऑफ 100 भी हो सकता है। सो ये 100 तक जाएगा। सो 100 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो जो किया वही बेहतर है। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 और 120। जरूरत नहीं है उसकी। मार्क्स, these are marks. अब आई एम राइटिंग स्केल। x axis and y axis। x axis क्या 1 सेंटीमीटर 10 मार्क्स होता है। ऑन x axis 1 सेंटीमीटर इज 10 मार्क्स, और वहां 1 सेंटीमीटर इज 1 स्टूडेंट। Many children do not write the scale. Remember, scale लिखने के लिए 1 मार्क होता है। So when you draw the graph, if you don't write the scale, आपका 1 मार्क चला जाएगा। So be careful. I hope you understood the scale. Highest mark 100. So 100 का हमने 10 इक्वल पास कर दिया। So 1 सेंटीमीटर 10 ले लिए, 10 ब्लॉक्स मिल जाएंगे हम। अब 2 सेंटीमीटर लेंगे तो 20 ब्लॉक्स चाहिए। It is difficult to get 20 blocks on x axis, क्योंकि आई थिंक 20 टोटल ब्लॉक से 20 है, और ऐसे शायद 24 है, 26 है, ऐसे 26 है, और ऐसे 20 के कुछ और ब्लॉक्स आपके ग्राफ पेपर में। ओके, चलिए ठीक है, अंडरस्टूड दैट। अब देखो, व्हाट इज 120 माइनस 110? व्हाट इज 110 माइनस 100? 100 माइनस 90? 90 माइनस 80? सेम हो रहा है ना। 80 माइनस 70? 70 माइनस 60? 60 माइनस 50? 50 माइनस 40? 40 माइनस 30? 30 माइनस 20? 20 माइनस 10? और लास्ट वन ऑल्सो 10 माइनस 0? 0 बोल रही है। 10 माइनस 0 0 नहीं, 10 माइनस 0 10। तो हर एक गैप सेम इंटरवल है। उसी तरह यहाँ 15 माइनस 14, 14 माइनस 13, 1 माइनस 0, 1 का ही। तो दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। जब नहीं होगा तो उसका इलाज क्या है, वो लड़का वही पूछ रहा है। ओके, विल सी दैट। तो हियर देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए अब बोलिए 0 to 20 मतलब यहां से यहां तक बार आएगा। कितने? 7 तो है हमारे। तो ये रहा 0 to 20 वाला, हम बार ले ले 7 तक और पूरा टॉपर। देयर वोंट बी एनी गैप हियर, यहां कोई गैप होने वाला नहीं है। फिर 20 to 30,
20 to 30 इतना ही है, और 10 कहाँ होगा, यहाँ है ना, ये 10 है ना, ये 0 to 31, और इसको आपको एक्सटेंड करना है, ठीक है, नो, ऑलराइट। फिर 30 to 40, 30 to 40 कितना, 10, तो ये 40 वाला 10 तक ही जाएगा, है ना, ये 10 ही है ना, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट बात 20 तक, और वो 40 to 50, 40 to 50, यही 40 to 50 वाला ये आगे जाएगा, कहाँ जाएगा, 20 तक, ठीक है, अंडरस्टूड। फिर अगेन 50 to 60, 50 to 60, 20 तक, ये रहा 20 तक। आर यू गेटिंग मी? यूज रूलर, मेरे जैसे काम मत करना। चलो 60 to 70, 15 कहाँ है, यहाँ से 60 to 70, 15 वाला, ऑलराइट, ये ठीक है। 70 एंड अबव, लेकिन कहां तक, 100 तक, 100 से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो 70 to 100 कितना, 8 का यहां, दिस इज योर हिस्टोग्राम, दिस इज हाउ यू ड्रॉ हिस्टोग्राम, अंडरस्टूड, समझ में आया? All right, children, there are no more illustrations where we have to find histogram. So I have taken one additional illustration. 7 के साथ जोड़ दिया, 7/2. All right, चलिए. Draw histogram for the following frequency distribution. See, the weights are given and frequency, that is the number of students. But what do you find here? Is it continuous frequency distribution or discrete? नॉट ड्रॉ द हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तभी तो सब बार, तभी तो सब कॉलम एक दूसरे से जुड़े होंगे। आर यू गेटिंग मी? तो वी नो वी कैन कन्वर्ट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू, बड़ा आसान है। आई एम राइटिंग हियर वेट, या आई कैन पुट क्लास and frequency, that is number of students. 0.5 निकाल दो, this is lower boundary, but what is lower boundary point? 30.5, इसमें 0.5 बढ़ा दो, 35 is upper boundary, और 35.5 is upper boundary point, बस उस तरह 0.5 निकालो 35.5, 0.5 निकालो 40.5, 0.5 निकाल लो 45.5, 0.5 निकाल लो 50.5, 0.5 निकाल लो, राइट, दिस विल बी 50.5, यहाँ 0.5 बढ़ा दो 40.5, इंक्रीज 0.5, increase 0.5, 50.5, increase 0.5, 55.5, increase 0.5, 60.5. Frequency remains the same, 9, 6, 15, 3, 1. So your discrete frequency distribution is converted into continuous frequency distribution, and hence you can draw histogram. अब आप हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे, लेकिन बाउंड्री कुछ ऐसी, गैप देखो बाउंड्री का, 60 - 5 - 55.5, 5, 55.5 - 50.5, 5, 50.5 - 45.5, 45.5 - 40.5, आराम से प्रेम से बाजू में सब्ट्रैक्ट करके देखो। सेकंड क्लास बेंच बॉय, यू आर नॉट अटेंटिव बेटा, जरा ध्यान आपको। 40.5 - 25.5, इसे कहते हैं क्लास लेंथ, राइट, एंड दैट इज कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट। नाउ बी केयरफुल, हमें या वही उतने ही क्लासेस चाहिए। अब 5 लेने जाएंगे तो 0 तक तो बहुत, यहाँ 0 नहीं है,
यहाँ जीरो नहीं है, सो नंबर ऑफ क्लासेस ही गिनेंगे, वही बेहतर है। विल काउंट नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6, तो उसका डबल हो सकता है, 6 का डबल हो सकता है। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि यहाँ 55.5, 50.5, 45.5, 40.5, 35.5, फिर 30.5, 20.5, 15.5, 10.5, 5.5, 0.5, फिर माइनस 4.5, પણ 0 તો આવવાનો જ નથી, 0 આવવો જોઈએ ને। પ્રીવિયસમાં કેવું લીધેલું? 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0। यहाँ 0 नहीं आने वाला है, इसलिए I'll just count number of classes 1 2 3 4 5 6, और 6 2s are 12 blocks हो सकते हैं, so आराम से 12 blocks ले लेंगे। So let me do that work first। और इसको भी देख लो, मैक्सिमम वैल्यू y एक्सिस पे 15, ओके। सो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक। यहाँ कितने ब्लॉक्स चाहिए? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 extra 13 और 14। Now you better be careful। ये पहला वाला लोअर लिमिट लेना है आपको, उससे स्टार्ट करना है। आप 2 मार्क ले रहे हैं, 2 सेंटीमीटर, ऐसे ले रहे हैं ना। बी केयरफुल, जरूरत पड़ी तो और आगे। I'll start with, I'll write like this now, 30.5, फिर 35.5, फिर next, वो लास्ट आ गया, यस 16.5। हम एक और ले लेंगे 65.5, ऑलराइट। और ये क्या है? वेट, यस, वेट इन केजी, ऐसे लिखेंगे। और ये 1 1 लेंगे, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है ना। और ये क्या है? नंबर ऑफ अब स्केल, वेरी इंपॉर्टेंट स्केल, एक्स एक्सिस, y axis, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ 1 सेंटीमीटर हमने 5 लिया है, सॉरी 2 सेंटीमीटर, एक्स एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर लिया है। 2 सेंटीमीटर 5 का गैप है ना, 5 क्या? केजी, 5 केजी। और यहाँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1। नाउ वन थिंग यू हैव टू ऑब्जर्व हियर, ये खतरनाक है। ये तो देखो 8 minus 7, 7 minus 6, 6 minus 5, 5 minus 4, 4 minus 3, 3 minus 2, 2 minus 1, 1 minus 0, 1 है ना। 1 1 का गैप होता है, यहाँ 0 होता है। यहाँ से शुरू करें। 45.5 minus 40.5, 40.5 minus 35.5, 35.5 minus 30.5, 30.5 minus 0, 30.5 होगा। वो 10 का गैप नहीं है। तो क्या किया है, यू नो, आई एम गोइंग टू इरेज दिस पार्ट, ऐसे। फिर मैं कुछ ओके, उसके बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ, जहां कट किया बीच में लाइन, और यहां से ऊपर जोड़ो और यहां से नीचे। दिस इज कॉल्ड किंग, this is called એટલે હું કરેલું છે, અહીંનો આખું લાંબુ છે પણ અમે યસ સ્ક્વીઝ કર્યું છે, કોન્ટ્રાક્ટ કરીને મૂકી દીધું છે, है ना, है ना। वो पतंग का दौरा कितना लंबा होता है, लेकिन फिर की में हम इसको रोल करके शॉर्ट कर देते हैं ना।
So this is very important when the class length of the first one is not there. 5 હોવું જોઈએ ને, તો પહેલામાં તો 30.5 નો ગેપ પડે છે. So all intervals should be same. So whenever intervals are not same in the beginning, you will have to put in. This is the जो भी लाइन होती है उसको आप कट कर दो इरेजर से, एग्जैक्टली सेंटर में लाइन ड्रॉ करो, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, ऐसे. दिस इज हाउ वी प्रिपेयर. नाउ यू आर रेडी, नाउ यू आर प्रिपेयर. बोलिए 30.5 to 35.5 ये वाला आ गया, ये वाला कितना 9. तो यहाँ मिलेगा, यहाँ से बार लगा दो और यहाँ से बार लगा दो. फिर 6, ये नेक्स्ट गैप 6 यहाँ मिलेगा, ये रहा. आर यू गेटिंग मी? फिर 15, तो ये बार और ऊपर जाएगा 15 तक. यहाँ कितना 45 तक, 45.5 तक की. सो ये रहा. थोड़ा थिक थिन होगा, यू कैन अंडरस्टैंड दैट. आई एम ड्रॉइंग, आई एम नॉट यूजिंग स्केल, दैट्स व्हाई. ओके, देन 45.5 to 50.5 ये वाला कहां तक? ओनली टिल 3. सो 3 वाली लाइन ये रही, ये रहा. फिर 50.5 to 55.5 दिस रेंज, सिर्फ 1 वाली लाइन यहाँ हो, ये रही. और फिर लास्ट 2 ये रही. 2 बीच में है, ये थोड़ा ऊपर कर लो. एंड योर histogram is ready. Use ruler nicely, please. Okay. What is the difference between histogram and bar graph? In bar graph, the columns that you will have will be always of equal width. It will be always of equal width. But in histogram, the width can be different. Tallness तो दोनों में अलग हो सकती है. The tallness in both histogram and bar graph can be different. But width in bar graph या column graph is always equal, but in histogram it can be thick or thin. यहाँ तो interval same है, सबका interval same है, so thickness भी same है. But in the previous sum पहला thick था और last one सबसे thick था, बाकी के सब equal thickness वाले. So in histogram thickness of the bars can be different. Tallness तो होती ही है. Is that clear? So I hope the histogram is clear to you. And if any frequency distribution, whether it is discrete or continuous, you will be able to draw the histogram. आपको continuous पहले से मिला तो well and good, तो आपको ये बनाना पड़ेगा नहीं. But if you are given discrete frequency distribution, yes, get rid of this boundaries. Lower boundary, upper boundary को निकालो and introduce lower boundary point and upper boundary point. और वो बड़ा आसान है. 0.5 निकालो तो लोअर बाउंड्री पॉइंट मिलेगा, यहां से 0.5 ऐड करो तो अपर बाउंड्री पॉइंट मिलेगा. इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट विल सी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे.